بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل میری کہانی سینٹر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹ کے لیے میری کہانی سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ آج کا قصہ ان سبھی بلاؤں کا ہے جنہوں نے انسانوں کا جینا حرام کر دیا تھا۔ میں نے دیکھا اس ویران مکان کی چھت پر بنی منڈیر پر بہت بڑا کالا بلا بیٹھا ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا اور اپنی زبان نکال کر پنجے چاٹنے لگا۔ اس کی زبان اتنی لمبی تھی کہ سانپ کا گمان ہو رہا تھا۔ وہ ہلکے زرد رنگ کا ویران مکان تھا جس کے سامنے پیپل کا ایک بے حد پرانا درخت تھا جس کی چھالیں درخت کے وسط تک لٹکی ہوئی تھی۔ اسی درخت کی وجہ سے ہر وقت مکان کے ارد گرد سوکھے پیلے چرمراتے پتوں کا ڈھیر لگا رہتا تھا جس پر چل چل کر چرمراتی آواز پیدا کرنا محلے کے بچوں کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ مگر ایک روز بڑی عجیب بات ہوئی۔ مسجد کے پیشی امام کا سب سے چھوٹا بچہ جس کی عمر تقریباً 4 سال تھی، وہ ان خشک پتوں پر پاؤں رکھ رکھ کر ان سے پیدا ہونے والی آواز سے خوش ہو رہا تھا کہ اچانک اس نے رونا شروع کر دیا۔ دوسرے بچوں نے رونے کی وجہ جاننا چاہی تو پتہ چلا کہ اس کا بایاں پاؤں پتوں کے اندر زمین میں دھنس گیا ہے اور کسی طور پر نکلنے کا نام نہیں لے رہا۔ محلے کے بچے بھاگے بھاگے امام صاحب کو بلا کر لے آئے۔ ان کے آتے ہی زمین نے بچے کا پاؤں چھوڑ دیا اور وہ امام صاحب کے سامنے دھپ سے گرا۔ امام صاحب اسے اٹھا کر گھر لے گئے مگر دن بدن اس کی وہ ٹانگ سوکھتی چلی گئی اور بالآخر وہ اس ٹانگ سے معذور ہو گیا۔ اس کی ٹانگ چونکہ نیلی ہو چکی تھی اسی لیے سب کا خیال تھا کہ ٹانگ میں پتوں میں سے کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے، کیونکہ اس درخت کی جڑ چونٹیوں، جھینگروں اور دیگر کیڑے مکوڑوں کا مسکن تھا جس میں محلے کے بچے آٹا، چینی اور چاول وغیرہ ڈالتے رہتے تھے۔ یہ بات بھی حیران کن تھی کہ چاہے جتنا بھی اناج ڈالا جائے اگر تھوڑی دیر بعد ہی وہاں دیکھا جاتا تو وہاں ایک دانے کا بھی نام و نشان نہ ہوتا۔ بچے تجسس میں گھنٹوں گھاٹ لگائے بیٹھے رہتے کہ دیکھیں یہ کیڑے اتنی جلدی اپنا کھانا بلوں میں کیسے لے جاتے ہیں۔ مگر جب تک بچے وہاں رہتے دانا جوں کا توں پڑا رہتا اور جہاں وہ چند لمحوں کے لیے بھی ادھر ادھر ہوتے دانا غائب۔ اسی مکان کے دائیں جانب رؤف چاچا کا گھر تھا جبکہ بائیں طرف خالی پلاٹ تھا جہاں کچھ عرصہ پہلے تک محلے کے لوگ کچرا ڈالا کرتے تھے، مگر کچھ شہری حکومت نے وہاں سے کچرا کا ڈھیر اٹھوایا تو بچوں کو کھیلنے کی اچھی جگہ میسر آ گئی، اسی لیے وہاں کچرا ڈالنا بند کر دیا گیا۔ محلے کے زیادہ تر افراد ان پڑھ تھے، حتیٰ کہ دین کی بنیادی باتیں بھی چند ہی لوگوں کے علم میں تھیں۔ ہر چھوٹے بڑے مسئلہ پر پیشی امام صاحب ہی کو پیش نظر رکھا جاتا تھا۔ اس مضافاتی محلے کی چھوٹی سی مسجد میں جھاڑو لگانے والے تو بہت تھے مگر نمازی کوئی کوئی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا رشتہ مذہب سے بے شک کچا تھا مگر عقیدے سے بڑا ہی پکا۔ عقیدے کی اسی ڈور نے انہیں مذہب سے مضبوطی سے باندھے ہوا تھا۔ اگر کسی کے پیٹ میں درد بھی ہوتا تو پہلے وہ امام صاحب سے جڑواتا پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا۔ عقیدے کی اسی برکت نے محلے والے کو ایک دوسرے کے قریب کر رکھا تھا۔ آپس میں لاکھ اختلافات ہوں مگر گھر میں پٹنے والے بچے کو بھی محلے والے ہی بچانے آ جاتے تھے۔ رؤف چاچا کے گھر کے ساتھ اکن خالہ کا دروازہ تھا۔ اکن خالہ بیوہ تھی، ان کے 3 بچے تھے۔ دونوں بیٹیاں رقیہ اور عظمیٰ جوان تھیں جبکہ سب سے چھوٹا امجد 10 سال کا تھا۔ اکن خالہ نے اپنے گھر میں ہی کریانے کی دکان کھولی ہوئی تھی۔ ان کے میکے اور سسرال دونوں کی طرف سے بھی ان کو خاصی مدد مل جاتی تھی۔ اکن خالہ کی رقیہ بڑی خوبصورت تھی، خاص طور پر اس کا رنگ اور کالے سیاہ لمبے بال۔ دوسری وہ تھی بھی بڑی سلیقہ مند، اسی لیے خالہ کو اس کے رشتے کے سلسلے میں
कोई परेशानी नहीं उठाना पड़ी। इनके रिश्तेदारों में ही रुकैया का रिश्ता तय हो गया। ये रुकैया का रिश्ता तय होने के 15 दिन बाद की बात है कि इसी मोहल्ले में रहने वाली खाला शबीरन के बेटे मकसूद ने इनका दरवाज़ा बजाया। अक्कन खाला ने दरवाज़ा खोला तो मकसूद के साथ कोई अजनबी बूढ़ी औरत खड़ी थी। खाला, ये मेरे दोस्त रियासत की अम्मी हैं, आपसे मिलने आई हैं। मकसूद के कहने पर खाला हैरान होती इन्हें अंदर लेकर आईं। बात करने पर पता चला कि वह रुकैया के रिश्ते के लिए आई थीं। खाला बोली, मेरी बच्ची की तो बात पक्की हो गई है, 11वीं में ब्याह भी दे दूंगी। बड़ी भी मुबारकबाद देकर चल दी। मगर खाला हैरान होती रही कि ये अगले मोहल्ले से कैसा रिश्ता लेकर आ गई, ना जान ना पहचान। मगर इन्हें मालूम नहीं था कि रियासत का मकसूद से बड़ा याराना था, इसीलिए वो अक्सर इनके मोहल्ले में आता रहता था। इसी आने जाने में इसने रुकैया को देख लिया और तब से कभी कभी आना जाना रोज़ का मामूल बन गया था। मगर इस बात का सिर्फ मकसूद को ही पता था। मकसूद को जब खाला का इनकार का पता चला तो वह खुद बात करने पहुंच गया और रियासत की ढेरों तारीफ़ें कर दी। मगर खाला, जो इसके सरार पर लिहाज में नहीं हो सकता, कहीं जा रही थी, आखिर में चढ़कर मकसूद को साफ मना कर दिया और बेटी की शादी की तैयारियों में लग गई। जो शादी के दिन करीब आ रहे थे, मोहल्ले के सारे ही घरों में तैयारियां भी बढ़ती ही जा रही थी कि ये इनके मोहल्ले में किसी बच्चे की पहली शादी थी। खाला ने भी मोहल्ले वालों को, रिश्तेदारों की हर तरह में शरीक कर रखा था। किसी घर में जोड़े टंग रहे थे तो किसी के घर गोटे किनारे लग रहे थे। मोहल्ले के नौजवान शादी और मायूं वाले दिन के लिए मेहमानों को बैठाने के लिए टेंट लगाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। फैसला हुआ घर के सामने गली में टेंट लगा दिया जाएगा। मगर यह भी महज इत्तेफाक ही था कि उपटन से एक दिन पहले गली के गटर भर गए और गंदा पानी बाहर उबलने लगा। सब परेशान हो गए। आखिर में सोचा कि जर्द रंग के घर के बराबर में पड़े खाली प्लाट पर टेंट लगा लेते हैं। मोहल्ले के तमाम लड़के वहाँ की सफाई में जीत गए। रऊफ चाचा ने जो देखा तो मना कर दिया कि यहाँ टेंट ना लगाओ। पूछा गया क्यों, तो बोले, मैं कुछ दिन पहले किसी से मिलकर रात के 2 बजे घर आ रहा था तो देखा इस वीरान मकान की छत पर बनी मुंडेर पर बहुत बड़ा काला बिल्ला बैठा है। मुझे देखकर वो खड़ा हो गया और अपनी ज़ुबान निकालकर पंजे चाटने लगा। इसकी ज़ुबान इतनी लंबी थी कि इस पर सांप का गुमान हो रहा था। फिर वह इस बिल्ले का इस प्लाट पर कूद गया। लड़कों ने हंसना शुरू कर दिया। क्या चाचा, तुम भी? ये कोई बात है डरने की? रात का अंधेरा था, साए की वजह से ज़ुबान लंबी नज़र आ रही होगी। और ये घर कब से वीरान पड़ा है, हमने तो आज तक यहाँ कुछ भी नहीं देखा। और वैसे भी मजबूरी है, पूरी गली गंदी हो रही है, इसीलिए यही तंबू लगाना पड़ेगा। लड़कों ने तंबू वालों को बुलाया और मायूं के लिए पंडाल सजा दिया गया। लड़कों ने पंडाल सजाने में बड़ी मेहनत की थी, इसीलिए पंडाल बना भी बहुत खूबसूरत। जिसने देखा तारीफ की। शाम हुई तो मेहमान भी आना शुरू हो गए। रुकैया को इसकी सहेलियों ने मोतिया के फूलों से सजाया था। जर्द जोड़े में मोतिया के फूलों से सजी रुकैया बहुत प्यारी लग रही थी। अभी रुकैया को स्टेज पर आकर बैठे हुए 10 मिनट ही हुए थे कि अचानक लाइट चली गई और तकरीब में थोड़ी अफरा तफरी सी मच गई। अचानक ही रुकैया की खौफनाक चीख सुनाई दी और फिर फ़ौरन ही लाइट भी आ गई। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। रोशनी में देखा तो रुकैया स्टेज पर बेहोश पड़ी थी। हर तरफ हलचल मच गई। इसे होश में लाने की सारी तदबीरें आजमाई गई, मगर सब बेकार गई। अचानक मकसूद अक्कन खाला के पास आकर बोला, खाला, रुकैया को फ़ौरन हॉस्पिटल ले चलो। अक्कन खाला
तो पहले ही बदहवास हो रही थी। फौरन बोली, चलो। मकसूद ने रियासत से कहा कि अपना रिक्शा ले आए। यूं तो रियासत की रिक्शा लाते ही अकन खाला, रुकैया और मकसूद रिक्शे में बैठ गए। खाला, तुम अमजद को तो बता दो कि हम सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं। वो देखो, वो सामने खड़ा है। मकसूद ने अकन खाला के बेटे की तरफ इशारा किया और अकन खाला जल्दी से उतरकर इसके पास दौड़ी। इसी असना में रियासत ने रिक्शा स्टार्ट किया और रुकैया को लेकर ये जा और वो जा। दरअसल अकन खाला के वहमो गुमान में भी नहीं था कि मकसूद और रियासत ने इस नाजुक सूरत हाल में कैसा शैतानी मंसूबा बना लिया है। रियासत को अपनी बेइज्जती का बदला लेने का मौका मिल गया, जो अकन खाला के इनकार के बाद इसे महसूस हुई थी। और मकसूद ने सोचा बगैरती कि इस बहती गंगा में वो भी हाथ धो लेगा, इसलिए वो भी रियासत के शैतानी मंसूबे में शामिल हो गया। वो रुकैया को लेकर रियासत के घर पहुंच गए, जहां इसकी अम्मा अपनी बेटी के घर गई हुई थी। यूं रियासत का घर अकेला था। वो दोनों इसे बुरी नीयत से उठाकर ले आए, मगर इन्हें मालूम ना था कि इनसे पहले भी इस दर्द रंग के वीरान मकान में बसेरा करने वाली आछी मखलूक रुकैया पर बुरी तरह फिदा हो गई है। इसीलिए रुकैया चीख मारकर बेहोश हुई थी और वो आछी मखलूक भी इन्हीं की तरह शैतानी सिफ्त थी। फिर भला वो रुकैया को इनके हवाले कैसे होने देती। रियासत के घर पहुंचते ही रुकैया को होश आ गया था और रियासत ने जो ही पेशे कदमी करना चाही, वो भफर कर खड़ी हो गई और इसकी आवाज़ भी बदल गई। इसने रियासत को दोनों हाथों से उठाकर फेंक दिया, जिससे रियासत का दायां हाथ टूटकर लटक गया। यही नहीं बल्कि रियासत के घर एक बिल्ली पली हुई थी। रुकैया के होश में आते ही बिल्ली ने पूरे कमरे में चीखे हुए दौड़ना शुरू कर दिया, मगर चूंकि दरवाज़ा बंद था इसीलिए वो बाहर ना जा सकी। रुकैया ने एडजस्ट में बिल्ली को पकड़ा और इसकी गर्दन चबा गई। बिल्ली का सारा खून इसने अपनी ज़ुबान से चाटा और जो खून ज़मीन पर गिरा था इसे खड़े खड़े ज़ुबान निकाल कर चाट गई। इसकी इतनी लंबी ज़ुबान देखकर मकसूद बेहोश हो गया। इतने में मोहल्ले वाले भी पहुंच गए। वो रुकैया को लेकर घर आ गए और लड़कों ने मकसूद और रियासत को बहुत मारा। इन दोनों ने ना सिर्फ ये बताया कि इसने शैतानी मंसूबा सबको बता दिया, बल्कि रुकैया की हालत के बारे में भी बताया, जिस पर रुकैया का फ़ौरन रूहानी इलाज शुरू कर दिया गया। इस बेचारी की शादी तो क्या होती। सालों इसका इलाज चलता रहा। इसके घर वाले जो पहले गरीब थे इसकी वजह से मफलूस हो गए, मगर वो जानबर ना हो सकी। जिस रात इसका इंतकाल हुआ उनके घर में बार बार वो काला बिल्ला कूदता रहा, जिसके बारे में रऊफ चचा ने सबको बताया था। गुस्ल देने वाली जब रुकैया की मैयत को गुस्ल दे रही थी तो इसने देखा कि इसके जिस्म पर जगह जगह दांतों और नील के निशानात थे। इस हसीन गोरी चिट्टी लड़की का रंग झुलस गया था। इधर रियासत और मकसूद दोनों यके बाद दिगरे अपना जहनी तवाज़न खो बैठे। ये रुकैया के मरने से चंद दिन पहले की बात थी कि मकसूद की माँ रोती हुई सबके दरवाजे पीट पीट कर कह रही थी, अरे देखो मेरा मकसूद मर गया। मोहल्ले वालों ने जाकर देखा तो इसकी गर्दन मटके में फंसी हुई थी और धड़ बाहर था और वो इसी हालत में मर गया था। रियासत पहले तो किसी शदीद किस्म की जल्दी बीमारी में मुब्तला हुआ, इसके बाद वो भी बहुत बुरी हालत में अपने घर में मुर्दा पाया गया। इन दोनों के मरने के बाद रुकैया भी मर गई। रऊफ चचा समेत बहुत से मोहल्ले वालों ने वो मोहल्ला भी छोड़ दिया और कई साल तक ये होता रहा कि इस वीरान घर के बाहर लगे पीपल के दरख्त की जड़ में अक्सर कोई कुत्ता या बिल्ली इस तरह मुर्दा हालत में मिलते जैसे किसी ने इनकी गर्दन चबाई हो। इस मोहल्ले की वो ज़मीन चूँकि अलर्ट नहीं थी, लिहाजा इस जगह पर बलडोज़र फेरकर अब वहाँ कमर्शियल प्लाजा बना दिया गया है।